Now let us start today with order 2. ठीक है, and order 2's most technical aspect is its rule 2, जिस पे हमें सबसे ज़्यादा elaboration करना होगा. It is a penal provision which is highly technical in nature, and this rule requires a lot of explanation. It is at par with the doctrine of constructive res judicata in terms of complexity. So this is why order 2 rule 2 will require a lot of explanation so that you get a basic idea that how is it working. So first of all, let us refer to the rule 1. Rule 1 says of order 2 that every suit shall as far as practicable be framed as to afford a ground for final decision upon the subjects in dispute and to prevent further litigation concerning them. Now this provision is more in the nature of a general policy statement than a mandatory requirement. The intention of the legislature underlying the provision appears to be that as far as possible, all the matters in dispute between the parties relating to the same cause of action should be disposed of in the same suit so as to prevent further litigation. ठीक है. Now we can come on order 2 rule 2. इस पे ध्यान दीजिएगा. इसमें आपको बेसिकली दो वाइस मिलेंगे. ठीक है, ये जो सेक्शन है इट हैज बीन क्रिएटेड to deal with two specific evils. First is splitting of claims and second is splitting of remedies या splitting of reliefs, जो भी मन करे आप कह लीजिए. Splitting of claims and splitting up of remedies. ठीक है. Now rule 2 of order 2 reads, every suit shall include whole of the claim which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action. Mark the words whole of the claim and cause of action. But a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court. Let me give you an illustration in this aspect. Let us suppose A advances a loan of rupees 3000 to B. ठीक है? And now A wants his case, his suit to be within a jurisdiction of a particular court. लेकिन उसका jurisdiction से 2500 रुपए का है, 3000 रुपए का नहीं है. So what A does, A relinquishes 500 rupees और 2500 का ही सूट इंस्टीट्यूट करता है, जबकि उसका ओरिजिनल क्लेम कितने रुपए का है, 3000 रुपए का, क्योंकि लोन उसने 3000 रुपए का बी को दिया था. अब ए जो है वो बी को सू करता है फॉर 2500 रुपीज ओनली बिकॉज ही इज डूइंग इट विद द इंटेंशन ऑफ ब्रिंगिंग सूट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट. नाउ ए कैन नॉट आफ्टरवर्ड सू बी for the leftover balance of 500 rupees. ठीक है. Why am I saying that? Read the next part of rule 2. Relinquishment of part of the claim. Where the plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquishes any portion of his claim, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished. तो यहाँ पे क्या है? Intentional relinquishment. ये वही इंटेंशनल रिलिंक्विशमेंट है जैसा कि इसके पहले लाइन में रेफर किया गया है कि द प्लेंटिफ में रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ सूट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट. तो ये जो उसका नेक्स्ट पार्ट है सब रूल 2 ऑफ ऑर्डर 2, वो ये बोलता है कि अगर प्लेंटिफ ने इंटेंशनली रिलिंक्विश कर दिया एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, then he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished. Omission का तो मतलब आप जानते हैं, जानबूझ के नहीं किया. ठीक है, he omitted. Let me give you one more situation. Let us suppose A sues B for 1000 rupees and against this claim B claims a counter claim of rupees 1500 which is the part of rupees 2000 which A owes to B. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. A sues B for rupees 1000. इस क्लेम के खिलाफ B जो है एक काउंटर क्लेम दायर करता है 1500 रुपए के लिए. ठीक है, और वो 1500 रुपए इज द पार्ट ऑफ द क्लेम विच अमाउंट्स टू रुपीज 2000. ठीक है, which A owes to B. However, B omits to counterclaim the left over the balance of rupees 500. क्योंकि देखिए 2000 रुपए ड्यू था ना, A ने क्लेम किया था 1000,
बी ने काउंटर क्लेम में 1500 रुपये रखा। उसने ये सोचा कि ये हमारे खिलाफ सूट लाएं, इन्हीं को ही पैसा देना पड़ जाएगा 500 रुपये। 1000 तो सेट ऑफ हो जाएगा अगर ये जीत गया। 1000 विल सेट ईच अदर ऑफ, ड्यू बैलेंस होगा 500 और वो मेरे फेवर में रिकवर होगा। और बी सोचते हैं मैं इनको आगे बाकी के बचे 500 रुपये के लिए सू करूँगा, ठीक है, आउट ऑफ दैट एंटायर 2000 रुपीज़। तो पूरा 2000 रुपये बी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बी यही सोच रहे थे। अब अगर ए के सूट में जहां पे बी ने काउंटर क्लेम किया था फॉर ₹1500, वहां पे अब सूट डिस्पोज ऑफ हो जाता है। बी अब आफ्टरवर्ड्स कैन नॉट सू फॉर द लेफ्ट ओवर बैलेंस ऑफ ₹500। ऐसा क्यों है? बिकॉज काउंटर क्लेम इज इन द नेचर ऑफ द सूट। जो काउंटर क्लेम होता है इट इज इन द नेचर ऑफ द सूट, याद रखिएगा। जब सेट ऑफ और काउंटर क्लेम बताऊंगा तो मैं उनके नेचर भी बताऊंगा। दिस इज वाई order 2 rule 2 in our illustration would apply on B, वरना वो ना अप्लाई होती। The true nature of a counter claim is akin to a cross suit। एक पार्टी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एक दूसरे को सू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो इलस्ट्रेशन जो मैंने दिए ये रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द क्लेम से डील करते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ओमिशन है। ये जो मैंने इलस्ट्रेशन दिया यहाँ पे ओमिशन हुआ है। बी के पास मौका था कि वो पूरा का पूरा 2000 क्लेम कर सकता था काउंटर क्लेम में, पर नहीं किया। उसने सिर्फ 1500 रुपए किया। और क्योंकि काउंटर क्लेम का जो नेचर होता है इट इज अकिन टू द नेचर ऑफ सूट, ऑर्डर टू रूल 2 उस पे अप्लाई करेगा, ठीक है। नाउ लेट अस गो बैक टू ऑर्डर टू रूल 2 अगेन। हम उसका फिर नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। ओमिशन टू सू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ्स। A person entitled to more than one relief in respect of the same cause of action may sue for all or any of such relief। वो सारी relief के लिए या any of the reliefs के लिए वो sue कर सकता है। But if he omits, except with the leave of the court, mark the words except with the leave of the court, to sue for all such reliefs, he shall not afterwards sue for any relief so omitted। बिना leave of the court obtain किए आपने omit किया to sue for all the reliefs। मान लीजिए 6 रिलीफ्स आपके पास अवेलेबल हैं, 6 में से आपने सिर्फ 3 रिलीफ क्लेम की या 4 रिलीफ क्लेम की, सारे रिलीफ नहीं क्लेम की। ऐसी सिचुएशन में यू कैन नॉट आफ्टरवर्ड सू फॉर एनी रिलीफ सो ओमिटेड। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द एक्सप्लेनेशन। द एक्सप्लेनेशन सेज फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल एन ऑब्लिगेशन एंड अ कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर इट्स परफॉर्मेंस and successive claims arising under the same obligation shall be deemed respectively to constitute but one cause of action, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ने से पहले जरा इस लॉ का ऑब्जेक्ट जान लेते हैं, फिर इसका नेचर जानेंगे, ठीक है, कि किस नेचर का है, और उसके बाद हम लोग थोड़ा इसमें आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये जो रूल 2 है ऑफ ऑर्डर 2 ये डिजाइन क्यों किया गया है? ये दो इवल्स को काउंटर एक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। पहला स्प्लिटिंग अप ऑफ क्लेम्स और दूसरा स्प्लिटिंग अप ऑफ रेमेडीज और रिलीफ। Order 2 Rule 2 has been designed to counteract two evils. First is splitting up of claims and second is splitting up of reliefs or remedies. अब जिस कार्डिनल प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है Order 2 Rule 2, वो कार्डिनल प्रिंसिपल है that the defendant should not be vexed twice for the same cause, ठीक। A defendant should not be vexed twice for the same cause। और सेकेंड प्रिंसिपल जिस पे बेस्ड है वो ये है टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, ठीक है। ये सेकेंड प्रिंसिपल है। द सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इज टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट्स। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ग्राउंड्स रिकॉग्नाइज किए हैं देवाराम वर्सेस ईश्वर चंद में। इट्स साइटेशन इज AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 378। और सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया था प्राइवी काउंसिल का जजमेंट दैट वाज नाभा कुमार वर्सेस राधा श्याम। इट्स साइटेशन इज AIR 1931 प्राइवी काउंसिल पेज नंबर 229। अब देखिए आपको केस लॉ मेंशन करने की जरूरत नहीं इन सारी चीजों में, मैं बस आपको केस लॉ साइटेशन से के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में आपको इस पे मेंशन करने की जरूरत नहीं, केस लॉ सीधे ऑब्जेक्ट लिखना है आपको। अब एक चीज का ध्यान रखिए कि जो प्ली है ना ऑर्डर 2 रूल 2 की, it is highly technical in nature and it will deprive the plaintiff to a right to sue
which would have been otherwise available to him had order 2 rule 2 been not there. अगर order 2 rule 2 ना होता तो ऐसे में plaintiff would have sued the defendant in respect of the claim which he so omitted or in respect of the claim or relief which he so omitted. ठीक है, तो relief या claim के लिए on a single cause of action जो उसने earlier omit कर दिया था उसके लिए वो sue कर सकता था had this rule not been there. order 2 rule 2 ना होता he would have sued the defendant for that. पर क्योंकि एक बार plea order 2 rule 2 की succeed कर गई तो effect क्या होगा? the plaintiff would be non-suited. plaintiff का जो suit है वो barred हो जाएगा void order 2 rule 2. So this is why order 2 rule 2 is also called a penal provision. इसका जो nature है ये एक penal provision का nature है, ठीक है. और penal provision को कैसे interpret किया जाता है? penal provisions are interpreted strictly. ये rule of interpretation है कि जो भी penal provision होते हैं they are interpreted strictly. क्यों इसको penal provision कह रहे हैं? इसको penal provision इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए punish कर रहा है plaintiff को for omitting to sue for a claim or omitting to sue for relief. अगर आपने omit कर दिया then order 2 rule 2 is punishing the plaintiff. Of course there are exceptions कि अगर leave of the court relief के context में ली गई है, लेकिन apart from that ज़्यादा exception नहीं है इसके, यही है. तो ऐसी situation में आप देख रहे हैं that the plaintiff is being penalized. तभी यहाँ पे कहा जाता है कि order 2 rule 2 is penal in nature, hence it is to be interpreted strictly. अब क्योंकि order 2 rule 2 को समझने के लिए आपको cause of action बहुत अच्छे से समझना होगा, इसीलिए I will now start to elaborate on cause of action. देखिए what is a cause of action? Generally it is said that till there is no cause, there cannot be any action in the court. तभी उसको बोला जाता है cause of action. For a cause, there has to be a right to sue. An infringement of that right or a clear and unequivocal threat to infringe that right would constitute a cause to bring an action in the court. Whether a particular threat gives rise to a compulsory cause of action would always depend upon the question that whether that threat effectively invades or jeopardizes the right which is vested in the plaintiff. ठीक है, तो ध्यान रखिए, to constitute a cause of action जो पहली चीज है वो क्या होनी चाहिए? राइट. और सेकेंडली देयर शुड बी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दैट राइट और अ थ्रेट टू बी इन्फ्रिंज्ड. या तो उस राइट को इन्फ्रिंज होना होगा या देयर मस्ट बी अ थ्रेट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दैट राइट. ठीक है. It is also understood as a bundle of facts which has to be averred and proved to sustain an action. एक दूसरी definition है इसकी. Honorable Supreme Court in the case of ABC Laminate versus AP Agencies, in that case Supreme Court defined the cause of action as a cause of action is a bundle of facts which taken with the law applicable to them gives the plaintiff a right to relief against the defendant. It must include some act done by the defendant, since in the absence no cause of action can possibly accrue. It is not limited to the actual infringement of the right sued, but includes all the material facts on which it is founded. It does not evidence the necessary to prove facts, but every fact necessary for the plaintiff to prove to enable him to obtain a judgment or decree. Everything which, if not proved, would give the defendant a right to immediate judgment must be a part of cause of action. But it has no relation whatsoever to the defense which may be set up by the defendant, nor does it depend upon the character of the relief paid by plaintiff. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब जरा सेकेंड जजमेंट देखते हैं इस पॉइंट पे. स्वामी आत्मानंद वर्सेस श्री रामकृष्णन. इसमें after recounting various precedents, the Supreme Court defined the cause of action in these words. Cause of action means every fact which, if traversed, would be necessary for the plaintiff to prove in order to support his right to a judgment of the court. It is the bundle of facts which, taken with the law applicable to them, gives the plaintiff a right to relief against the defendant.
It must include some act done by the defendant, since in absence of such act, no cause of action can possibly accrue. It is not limited to the actual infringement of right sued, but includes all the material facts on which it is founded. In Om Prakash Srivastava versus Union of India, Supreme Court opined that one of the tests for the purpose of Order 2, Rule 2, as to see whether the cause of action in the subsequent suit is identical or not, is to see that whether the same evidence will maintain in both action. तो ये cause of action की definition थी. अब ये definition इतनी popular है कि आपको एग्जाम में लिखनी होगी as it is. You have to write it as it is. So after writing these lines, that cause of action means every fact which, if traversed, would be necessary for the plaintiff to prove in order to support his right to the judgment of the court. It is a bundle of fact which, taken with the law applicable to them, gives plaintiff a right to relief against the defendant, and it must include some act done by the defendant, since absence of such act, no cause of action can possibly accrue, and it is not just limited to the actual infringement of the right suit, but also includes all material facts on which it is founded. ये आपको लिखना पड़ेगा. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने पहली बार पढ़ा था, और इनफैक्ट आप भी अगर सुन रहे होंगे, तो आपको इससे कॉज ऑफ एक्शन की डेफिनेशन नहीं पता चल रही होगी कि व्हाट इज अ कॉज ऑफ एक्शन. अब जब आप ये डेफिनेशन लिख लें तो कॉज ऑफ एक्शन जब आपको समझाना हो तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं. दिस इज दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट ऑफ कन्वल किशोर वर्सेस एसडी टेक्निकल सर्विस. उन्होंने भी एक बहुत अच्छे से ये बताया है कि कॉज ऑफ एक्शन के कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए फर्स्ट देयर शुड बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ अ राइट, एंड सेकेंड देयर शुड बी इट्स इन्फ्रिंजमेंट और थ्रेट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट. ये उन्होंने बताया. एंड आई थिंक ये एक एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन है. ये आप हमेशा ये जो मैंने अभी डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट की बताई उसके बाद जरूर लिखिएगा, तो ऐसे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. अब देखिए, मैं आपको कई बार इलस्ट्रेशन दे चुका हूँ कॉज ऑफ एक्शन के, पर मैं फिर देता हूँ कि देखिए कॉज ऑफ एक्शन को ऐसे सोचिए कि किस कारण से आप एक्शन ले रहे हैं डिफेंडेंट के खिलाफ. Why are you taking an action against the defendant? Cause of action. Action क्या है? Your suit. Cause क्या है? ये तो आप बताएंगे कि क्या cause है. अब cause हो सकता है breach of contract, cause हो सकता है defamation, cause हो सकता है आपका trespass, tort of trespass, कुछ भी हो सकता है. तो cause of action हम लोग किसको कहते हैं? इन्हीं सब चीजों को कहते हैं. ठीक है. अब causes of action number of them can हो सकते हैं. ठीक है. There can be number of causes of action. Contract based actions हो सकते हैं. Statutory cause of action हो सकते हैं, जैसे tort, assault, battery, invasion of privacy, slender, negligence. ठीक है. Breach of trademark, breach of copyright. तो number of चीजें हो सकती हैं. अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं breach of contract का. भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ डिफेंडेंट के साथ, डिफेंडेंट ने ऑन अ सेट डेट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया या बोल दिया मैं नहीं करूंगा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म, जो करना है कर लो. तो आपका जो राइट था अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वो वायलेट हुआ कि नहीं, है ना. दैट बिकम्स योर कॉज ऑफ एक्शन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इस पे आप रिलीफ क्या क्लेम करेंगे? डैमेजेस. ठीक है. डैमेजेस की रिलीफ आप क्लेम करेंगे. ये आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस. सो कॉज ऑफ एक्शन को रिलीफ से मत कंफ्यूज करिएगा. रिलीफ तो डैमेजेस है, रिलीफ तो आपका वो है क्या कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बट कॉज ऑफ एक्शन क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. वैसे ही लेट अस सपोज डिफेंडेंट ने आपको डिफेम किया है, आपको डिफेम किया है, आप उनके खिलाफ सिविल सूट दायर करते हो. वैसे डिफेमेशन तो क्राइम भी है इंडिया में, पर लेट अस इग्नोर दैट फॉर नाउ. सिविल सूट दायर करते हो. अब सिविल सूट दायर करके आप रिलीफ क्या मांगते हो? आप रिलीफ 3 मांगते हो. पहला कि दी डिफेंडेंट शुड बी परमानेंटली इंजंक्टेड फ्रॉम मेकिंग डेफेमेटरी स्टेटमेंट. दूसरा, जो भी डेफेमेटरी स्टेटमेंट दिए हैं उसके कंटेक्स्ट में अपॉलॉजी दे. और तीसरा, डैमेजेस. ठीक है. डैमेजेस में आपको मनी दे, कंपनसेशन दे. और चौथा एक और रिलीफ भी आप ऐड कर सकते हो उसमें कि अगर मान लीजिए पैम्फलेट्स या किसी रिटन मटेरियल पे लिबेल पब्लिश्ड है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? उन सारे पब्लिश मटेरियल का डिस्ट्रक्शन डिमांड कर सकते हैं. ठीक है. यू कैन ऑल्सो डिमांड दैट. तो ये क्या हुई? ये रिलीफ हुई आपकी. पर कॉज ऑफ एक्शन क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्शन हियर? इट इज द टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन. ठीक. मैं इसको ज्यादा टेक्निकल नहीं करना पसंद करूंगा क्योंकि आपको थोड़ा बेसिक एस्पेक्ट्स पे ले जाके समझाऊं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए. आपको समझ में आना चाहिए. देखिए प्रोसीजर लॉ का एसेंस ही है. अगर समझ में आ गया,
और एक बार समझ में आ गया तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। और अगर नहीं समझ में आया तो जितना भी आप बेयर एक्ट में दिमाग खपा लीजिए, कभी नहीं समझ में आएगी बेयर एक्ट। ये है प्रोसीजरल लॉज का खेल। सब्सटेंशिव लॉ अक्सर ऐसे नहीं होते, पर प्रोसीजरल लॉ आपको हमेशा ऐसे ही मिलेंगे। दैट इज वाई प्रोसीजरल लॉ इज टफर। तो आप ध्यान रखिएगा कि कॉज ऑफ एक्शन जब भी आप सुने तो आपको ये सारी चीजें याद आनी चाहिए, ठीक है। और सिविल लॉ की सबसे अच्छी बात यह है कि कॉज ऑफ एक्शन की डेफिनेशन जो हम लोग इंडिया में पढ़ रहे हैं, ये इंटरनेशनली चाहे आप यूके जाएं, कनाडा जाएं, या किसी भी कॉमनवेल्थ कंट्री में जाएं, या आप यूएस में चले जाएं, कॉज ऑफ एक्शन वहां पे सेम रहेगा, सेम डेफिनेशन रहेगी। इसीलिए सिविल लॉ एक बेस बनता है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एनी सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल प्रैक्टिस। अगर आप सिविल लॉ में अच्छे नहीं हैं तो भूल जाइए किसी फॉरेन जुरिस्डिक्शन का लॉ पढ़ना या इंटरनेशनल कमर्शियल मैटर्स में अपीयर करना। इसलिए सिविल लॉ के प्रिंसिपल्स को लेके अवेयर होना बहुत जरूरी होता है। सीपीसी वहां पे एज इट इज नहीं आएगी, पर सीपीसी में जितने प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेटेड है वो जरूर आएंगे। सीपीसी के प्रिंसिपल जरूर आएंगे। यू विल डू व्हाट देन। इसीलिए सीपीसी आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट, और उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द बेयर एक्ट इटसेल्फ। बेयर एक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, प्रिंसिपल्स उसके उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे यूएस में चले जाएं या कनाडा में चले जाएं, कॉज ऑफ एक्शन की डेफिनेशन वही रहेगी। वैसे ही रेस जुडिकाटा ही आपको वैसे ही मिलेगा। आपको हो सकता है वहां उनके जुरिस्डिक्शन में ऑर्डर 2 रूल 2 के टाइप का मिलता जुलता प्रोविजन मिल जाए, तो उस प्रोविजन को समझने के लिए आपको यहाँ के प्रोविजन समझने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये है ना कि आप तो इंडिया में रह रहे हैं, तो आपको तो आपकी तो बेसिक एजुकेशन तो यहीं पे होगी ना। तो अपना बेसिक एजुकेशन विद रिगार्ड टू द सिविल जुरिस्डिक्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखिए, कॉज ऑफ एक्शन को किसी ट्रांजैक्शन से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। एक ट्रांजैक्शन से नंबर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन निकल सकते हैं, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन से नंबर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन निकल सकते हैं, बट दैट ट्रांजैक्शन इटसेल्फ इज नॉट द कॉज ऑफ एक्शन, याद रखिएगा, ठीक है। सो नेवर कंफ्यूज अ ट्रांजैक्शन with a cause of action. Having given you a basic understanding of that, we'll just come back again to order 2 rule 2. अब वापस आ जाते हैं cause of action से निकल के, हम जरा वापस आते हैं। अब मैं आपको कुछ illustration देता हूँ order 2 rule 2 के context में। अब पहला illustration consider करिए। A sues B for possession alleging that B is a tenant in arrears, ठीक। A sues B for possession alleging that B is tenant in arrears. The suit is dismissed on the ground that B is a mortgagee in possession. Then, with the effect of Order 2 Rule 2, a subsequent suit by A against B for redemption will not be barred. अगर हम Order 2 Rule 2 का effect consider करें तो हमारे illustration के sake के लिए जो सब्सिक्वेंट सूट बाय ए है अगेंस्ट बी फॉर रिडेम्पशन, वो बार नहीं होगा। क्यों नहीं बार होगा? वंस अगेन ऑर्डर 2 रूल 2 फिर से पढ़िए। एवरी सूट शैल इंक्लूड वोल ऑफ द क्लेम विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। ऑफ वहीं पे रूल 2 का सब रूल 2 क्या कहता है, उसी का रिंक्विश कर दिया पार्ट ऑफ द क्लेम विद रिस्पेक्ट टू द सेम कॉज ऑफ एक्शन, या ओमिट किया। और सब रूल 3 is about the omission to sue for one of several relief in respect of the same cause of action, ठीक है। यहां पे मेन चीज क्या देखनी है आपको, कॉज ऑफ एक्शन। हमारे इलस्ट्रेशन में जब सबसे पहली बार ए ने बी को सू किया था, वो पोजेशन के लिए किया था, और उसका क्लेम ये था कि दैट बी इज टेनेंट इन एरियर्स, ठीक है। दैट बी इज अ टेनेंट इन एरियर्स, इसका मतलब है कि बी को रेंट देना है, उसने वो दिया नहीं है अभी तक, ठीक है। सो द कॉज ऑफ एक्शन देयर वाज व्हाट, नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, and the suit is dismissed on the ground that B is a mortgagee in possession, ठीक। अब A जब नेक्स्ट सब्सिक्वेंट सूट ला रहा है तो वो रिडेम्पशन के ग्राउंड पे ला रहा है। Here the cause of action is different, ठीक है। Here the cause of action is what? Different. That is why the subsequent suit will not be barred by order 2 rule 2. Similarly, consider the illustration which has been given under the Bayer Act itself.
A lets a house to be at an yearly rent of rupees 1200. The rent for the whole of the years 1905, 1906 and 1907 is due and unpaid. A sues B in 1908 only for the rent due for 1906. A shall not afterwards sue B for the rent due for 1905 or 1907. ऐसा यहाँ पे क्यों है? Why is it barred? It is barred because order 2 rule 2 is applying in full force. Cause of action क्या था? Non payment of rent. ठीक है? कितने सालों का ड्यू था? 3 सालों का. एक ही साल के रेंट के लिए उन्होंने सू किया और बाकी के 2 साल छोड़ दिया. तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे plaintiff omitted to sue in respect of the portion of his claim on a single cause of action. That is why he shall not afterwards be allowed to sue the defendant in respect of the portion so omitted. ठीक है? Now consider a different illustration. यहाँ पे भी ऑर्डर इस मैं बता रहा हूँ इलस्ट्रेशन में कि आप ऑर्डर 2 रूल 2 नहीं अप्लाई करेगा और आपको सोचना है क्यों. A sues B for rent. ध्यान से सुनिएगा. A sues B for rent. Suit is dismissed on the finding that A is not the landlord, but A and B are tenants in common. उसके बाद A एक subsequent suit लाता है against B for partition of that property. क्या ये बार होगा by order 2 rule 2? The answer is no, it won't. Why? Cause of action is different. ये जो दोनों इलस्ट्रेशन जो मैंने अभी आपको दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं. ठीक है? तो आप इसको रीजनिंग से आंसर करिएगा वहां पे. अब एक बात का ध्यान रखिए. देखिए, बिफोर द बार ऑफ ऑर्डर 2 रूल 2 इज इन्वोक्ड, 3 क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड बाय द कोर्ट. 3 सवाल कोर्ट को पूछने बहुत जरूरी है और इन्हीं 3 सवालों के अराउंड इश्यू फ्रेम होते हैं. पहला, whether the cause of action in the previous suit and the subsequent suit is identical. पहला ये. Second, whether the relief claimed in subsequent suit could have been given in the previous suit on the basis of the pleadings made in the plaint. और तीसरा, whether the plaintiff omitted to sue for a particular relief on the cause of action which has been disclosed in the previous suit. अगर तीनों का आंसर है हाँ, then the subsequent suit would be barred by order 2 rule 2. तो एक चीज का ध्यान रखिएगा आप कि सेम कॉज ऑफ एक्शन इज वेरी एसेंशियल. सेम कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए. फिर उसके कंटेक्स्ट में आपको देखना है कि क्या द प्लेंटिफ ओमिटेड टू सू फॉर अ पर्टिकुलर रिलीफ और ही ओमिटेड टू सू फॉर अ पार्ट ऑफ द क्लेम. ये दोनों चीजें आपको देखनी है. ठीक है? और जो अभी मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए, दैट द कोर्ट हैज टू कंसिडर, बट सेम कॉज ऑफ एक्शन के कंटेक्स्ट में. ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस रूल, ऑर्डर 2 रूल 2, does not require that when several causes of action arise from one transaction, the plaintiff should sue for all of them in one suit. ठीक है? The rule does not require that when several causes of action arise from one transaction, the plaintiff should sue for all of them in one suit. What the rule lays down is that there is one entire cause of action and the plaintiff cannot split the cause of action into parts so as to bring separate suits in respect of those parts. ठीक है? I'll reiterate again, you have to write it down. The rule does not require that when several causes of action arise from a single transaction or one transaction, the plaintiff should sue for all of them in one suit. What the rule lays down is that there is one entire cause of action and the plaintiff cannot split the cause of action into parts so as to bring separate suit in respect of those parts. In other words, the rule requires unity of all claims based on the same cause of action in one suit. It does not contemplate unity of distinct and separate cause of action. ध्यान रखिएगा कि जो ऑर्डर 2 रूल 2 है ना, वो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे अप्लाई करेगा. वो ये नहीं एनविसेज करता है कि आप डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन क्लब करिए टुगेदर. ठीक है? उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन से नहीं डिटरमाइन होती.
एक ही ट्रांजैक्शन से कई कॉज ऑफ एक्शन निकल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए उनमें से आपने एक कॉज ऑफ एक्शन निकाला, तो ऑर्डर टू रूल 2 तब अप्लाई करेगा जब आप उस एक कॉज ऑफ एक्शन के भी पार्ट्स बनाने शुरू कर देंगे, कि उस एक कॉज ऑफ एक्शन में आपके पास कई रिलीफ मौजूद है पर आप उनमें से कुछ रिलीफ ओमिट कर देते हैं विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, या उस कॉज ऑफ एक्शन से आप कुछ पोर्शन ऑफ द क्लेम गायब कर देते हैं, मे बी आप इंटेंशनली रिलिंक्विश कर रहे हैं या आप ओमिट कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट सिनेरियो ऑर्डर टू रूल 2 सिर्फ उसी सिचुएशन पे अप्लाई होगा। ठीक है, वो उस सिचुएशन पे नहीं अप्लाई होगा जहां पे डिस्टिंक्ट या सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहे हैं। ठीक है, वो सेम कॉज ऑफ एक्शन के स्प्लिट करने को बार करता है और ये इंश्योर करता है कि प्लेंटिव एक सिंगल कॉज ऑफ एक्शन को स्प्लिट करने के बाद सेपरेट क्लेम्स ना ला सके फॉर द पोर्शन विच ही हैज ओमिटेड और रिलिंक्विश्ड। ठीक है, सेम गोज फॉर रिलीफ एज वेल। अब एक लोकस क्लासिकस मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस करता हूं, वो है मोहम्मद खलील खान वर्सेस महबूब अली मियां। प्राइवी काउंसिल का केस है एंड इट इज अ लोकस क्लासिकस, दैट इज व्हाई यू हैव टू मेंशन इट इन एग्जाम। सो इन दिस केस द इश्यू ऑफ ऑर्डर टू रूल 2 अप्लाइड। थोड़ा फैक्ट बता देता हूं, अर्लियर सूट जो था दैट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एट अवध। ठीक है, और जो पार्टीज थी दे बिलोंग टू सुन्नी सेक्ट and the properties belong to one Rani Barkatunnisa who owned property at शाहजहांपुर and अवध। दो जगह पे वो प्रॉपर्टी ओन करती थी, शाहजहांपुर पे भी और अवध पे भी। अब फर्स्ट सूट में प्रॉपर्टी एट शाहजहांपुर वाज नॉट इंक्लूडेड। ठीक, तो ये मैटर गया था टू प्राइवी काउंसिल, और प्राइवी काउंसिल ने इन रिलेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज एट शाहजहांपुर the Privy Council categorically mentioned that by virtue of Order 2 Rule 2 the suit is barred, the subsequent suit is barred। इस केस में प्राइवी काउंसिल ने कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन किए थे जो प्रिंसिपल्स आज भी एप्लीकेबल हैं। ठीक है, उन प्रिंसिपल्स को आपको मेंशन करना होगा। द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट वाज मेंशन्ड इन दिस केस वाज that the correct test in cases falling under Order 2 Rule 2 is whether the claim in the new suit is in fact founded upon a cause of action distinct from that which was the foundation of the former suit। ठीक, ये पहला मतलब cause of action different है या नहीं। Second principle is the cause of action means every fact which will be necessary for the plaintiff to prove if traversed in order to support his right to judgment। Third is if the evidence to support two claim is different then the cause of action is also different। ये भी एक टेस्ट होता है कि अगर different evidence से claim satisfy हो रहा है तो हो सकता है कि cause of action भी different है, लेकिन एक conclusive test नहीं है, it is one of the test। So I'll reiterate again, if the evidence to support two claim is different then the cause of action are also different। Fourth, cause of action in the two suit may be considered to be the same if in substance they are identical। And fifth principle is that the cause of action has no relation to the defense that may be set up by the defendant, nor does it depend upon the character of the relief paid by the plaintiff। It refers to the media upon which the plaintiff asks the court to arrive at a conclusion in his favor। You have to mention these principles as it is in exam। अब प्राइवी काउंसिल ने जब ये प्रिंसिपल्स अप्लाई किए ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, तो उन्होंने पाया कि जो प्रीवियस केस था जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन इनका था ट्रेसपास एंड स्लैंडर, वो अवध की भी प्रॉपर्टी पे हुआ था और शाहजहांपुर की भी प्रॉपर्टी पे हुआ था। ठीक है, और इट फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन एज वेल। साथ ही साथ द एविडेंस टू प्रूव दैट फैक्ट which was necessary for the plaintiff to prove was also the same and the bundle of essential facts was also the same। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ने बोला कि आपने ओमिशन किया है टू सू इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट वाज सिचुएटेड एट शाहजहांपुर। तो अफेक्ट क्या हुआ? अफेक्ट ये हुआ दैट योर सब्सिक्वेंट सूट इज बार्ड बाय ऑर्डर 2 रूल 2। आपको प्रीवियस सूट में अवध की प्रॉपर्टी और शाहजहांपुर की प्रॉपर्टी दोनों को इंक्लूड करना था, पर आपने एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे एक पोर्शन को तो आपने एडमिट किया और दूसरे पोर्शन को आपने ओमिट किया। ऐसी सिचुएशन में एज फार एज द प्रॉपर्टीज
which are situated in Shahjahanpur, उनके context में the subsequent suit is barred by order 2 rule 2, क्योंकि जो previous suit था it only related to the properties at Awadh, और उसमें omission हुआ था with regard to the properties at Shahjahanpur. So I hope you understand this part कि ये जजमेंट ने ऐसा क्यों होल्ड किया था. बेसिकली अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि हुआ क्या था कि इनका जो अर्लियर सूट था इट ओनली रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एट अवध. ठीक है, दोनों पार्टी सुन्नी सेट को बिलोंग करती थी, और जो दोनों प्रॉपर्टी की जो एक मालकिन थी जिसके थ्रू ये लोग क्लेम कर रहे थे, दैट वाज वन रानी बरकतुन्नीसा. ठीक है, वो दोनों जगह की प्रॉपर्टी होल्ड करते थे, शाहजहांपुर की भी और अवध की भी. फर्स्ट सूट में इन्होंने सेम ग्राउंड पे, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, देयर वाज ओनली अ सिंगल कॉज ऑफ एक्शन, और उसी कॉज ऑफ एक्शन पे इन्होंने सिर्फ अवध की प्रॉपर्टी इंक्लूड की बट शाहजहांपुर की ओमिट कर दी. ऐसे सिचुएशन में जब शाहजहांपुर की प्रॉपर्टी रिकवर कराने के लिए इन्होंने सब्सिक्वेंट सूट डाला, इट वाज बार्ड बाय ऑर्डर 2 रूल 2 आफ्टर अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स जो अभी मेंशन किए. उसमें लॉर्डशिप्स ऑफ द प्राइवेट काउंसिल स्टेटेड कि in the case before us, the trespass on title or slander of title in the case so far as Awadh suit was concerned was not distinct and different either in the point of time or in point of character from the trespass on possession in the case of Shahjahanpur property. Again, in the present case, we find that there are two trespasses, one on Shahjahanpur property and the other at Awadh property. They were similar in character, formed the part of same transaction, and the evidence to prove the facts which it was necessary for the plaintiff to prove was same, and the bundle of essential fact was also the same. इसका मतलब है सेम कॉज ऑफ एक्शन है. प्राइवेट काउंसिल अपनी टर्मिनोलॉजी में कह रहा है ये सेम कॉज ऑफ एक्शन है. दिस इज वाई जजमेंट को ट्रांसलेट करना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना इट माइट मिसलीड यू. कॉज ऑफ एक्शन दोनों का प्राइवेट काउंसिल ने सेम पाया था. एक ट्रांजेक्शन से ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन निकल सकते हैं. नंबर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन कैन अराइज फ्रॉम द सेम ट्रांजैक्शन, लेकिन यहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन से एक ही कॉज ऑफ एक्शन निकला था. ठीक है, तो प्राइवेट काउंसिल ने देखा सब कुछ तो सेम है, बंडल ऑफ फैक्ट सेम है, एविडेंस सेम है. ठीक है, दोनों सूटों में एविडेंस भी आइडेंटिकली होगा, कैरेक्टर ऑफ द सूट्स भी सेम है, तो ऑर्डर 2 रूल 2 स्क्वायरली अप्लाई कर रहा था. कोर्ट ने सीधे बोला कि यू omitted to sue in respect of the portion of the claim on a single cause of action. That is why you are not entitled to relief. Sorry, you are not. This subsequent suit is barred by order 2 rule 2. और प्राइवेट काउंसिल ने इनकी अपील डिसमिस कर दी. अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें प्राइवेट काउंसिल ने भी एक बात नोट की थी कि अगर आप इनकॉम्पिटेंट काउंसिल लेते हो तो देखिए इसमें मेन गलती पता है कहाँ हुई होगी. काउंसिल की हुई होगी जिसने प्लेन ड्राफ्ट की होगी. भाई भूल गया, ध्यान नहीं रहा. अब ऑफ कोर्स ये जो ऑर्डिनरी पर्सन है इनको लॉ की जानकारी थोड़ी ना इतनी. अब ध्यान नहीं रहा होगा तो कुछ प्रॉपर्टीज इंक्लूड करना भूल गए. सूट का जजमेंट आ गया, प्रीवियस सूट वाले की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ. अब ये भूल गए, अब इनको ध्यान आया होगा अरे शाहजहां वालीपुर की तो प्रॉपर्टी लिखी नहीं लॉयर ने, तो इन्होंने दूसरा सूट किया होगा. फिर इनको पता चला ले ऑर्डर 2 रूल 2 से बाहर हो गया. देखिए वहाँ पे फिर कोर्ट में ये एक्सक्यूजेस काम नहीं करेगा कि लॉयर इनकॉम्पिटेंट था. दैट इज नॉट एनफ टू लिफ्ट द बार ऑफ ऑर्डर 2 रूल 2. अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके दिमाग में अराइज हो रही है तो उसे तुरंत अभी आंसर कर दीजिए कि इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द लॉयर इज नो एक्सक्यूज फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द बार ऑफ ऑर्डर 2 रूल 2. ठीक है, अब यही सारी चीज़ें नहीं पता होंगी आपको तो आप प्लेन ड्राफ्ट भी नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, और उसका इफेक्ट इतना डिजास्ट्रस हो सकता है कि यू वुडंट हैव एन आइडिया. दिस इज व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द लॉ ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक. अब जरा मैं थोड़ा और इसका बेसिक एस्पेक्ट डील कर लेता हूँ. ये नोट डाउन कर लीजिए. प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 2 रूल 2 सिर्फ सूट पे अप्लाई करता है, याद रखिएगा. अपील पे नहीं अप्लाई करता है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे नहीं अप्लाई करता है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे नहीं अप्लाई करता है, या रेट प्रोसीडिंग पे नहीं अप्लाई करता है. ठीक है, ये सिर्फ सूट पे अप्लाई करेगा. नाइदर ऑन अपील अप्लाई करेगा, नाइदर इट विल अप्लाई ऑन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग नॉर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नॉट टू अ पिटिशन अंडर आर्टिकल 226. ये इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा. ऑल्सो इट डज नॉट अप्लाई टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स एज वेल. उस पर मैं बाद में आऊँगा. आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे भी ऑर्डर 2 रूल 2 नहीं लगता है. और एक और चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपके पास काउंटर क्लेम या सेट ऑफ मौजूद है और आपने उनको क्लेम ही नहीं किया, एट ऑल क्लेम नहीं किया, ठीक है, उस इलस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में मत सोचिएगा जिसमें क्लेम किया पर एक पोर्शन ओमिट कर दिया.
ऐसे नहीं चलेगा। अगर काउंटर क्लेम या सेट ऑफ आपके पास मौजूद है और आपने उसको क्लेम नहीं किया, तब भी ऑर्डर टू रूल 2 नहीं अप्लाई करेगा। ठीक है, वो तब अप्लाई करेगा जब मान लीजिए काउंटर क्लेम आपके पास अवेलेबल है और काउंटर क्लेम आपने क्लेम भी किया और उसका एक पोर्शन ओमिट कर दिया, तब लग जाएगा, क्योंकि काउंटर क्लेम वुड बी इन नेचर ऑफ व्हाट, इट वुड बी इन नेचर ऑफ अ सूट। ठीक है, काउंटर क्लेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कोर्ट वो डिफेंडेंट का एक तरीके से सूट ही होता है। उसमें जो कैरेक्टर ऑफ द डिफेंडेंट होता है ना काउंटर क्लेम में, द कैरेक्टर ऑफ द डिफेंडेंट चेंजेस टू दैट ऑफ अ प्लेंटिफ इन अ काउंटर क्लेम। ठीक है, ये थोड़ा अगर आपको अभी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा तो जस्ट ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि हम लोग जब रिटन स्टेटमेंट पे आएंगे देन विल बी डीलिंग विद सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम ऑर्डर 8 में। ठीक है, तो अभी के लिए ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए कि प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 2 रूल 2 अप्लाई ओनली टू सूट्स एंड इट डज नॉट अप्लाई टू अपील्स, it does not apply to execution petitions or applications, it does not apply to writ petitions, it does not apply to arbitration proceedings। ठीक है, अब जरा हम लोग ऑर्डर 2 रूल 2 के रिलीफ वाले एस्पेक्ट्स को लेके थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, ओमिशन टू सू रिलीफ, वन ऑफ सेवरल रिलीफ्स अगर आपके पास मौजूद है और आपने ओमिट किया, देन यू कैन नॉट ऑल्सो हैव अ सब्सिक्वेंट सूट इन ऑर्डर टू सू फॉर द रिलीफ that you omitted in the previous suit. You know about it. तो देखिए, when you look at the provision of order 2 rule 2, it shows that once the plaintiff comes to a court of law for getting any redress basing his case on an existing cause of action, he must include in his suit the whole claim pertaining to that cause of action. But if he gives up a part of his claim based on the said cause of action or omits to sue in connection with the same, he cannot subsequently resurrect the said claim based on the same cause of action. So far as sub-rule 3 of rule 2 of order 2 is concerned, before the second suit of the plaintiff can be held to be barred by the same, it must be shown that the second suit is based on the same cause of action on which the earlier suit was based. And if the cause of action is same in both the suits, and if in earlier suit the plaintiff had not sued for any of the reliefs available to it on the basis of that cause of action, the relief which it had failed to press into the service cannot be subsequently prayed for except with the leave of the court. ठीक है, अगर आपने leave of the court ले ली है और उसके बाद you omit to sue for that relief तो चलेगा, लेकिन leave of the court नहीं ली है, then you are gone. You cannot sue in respect of the relief you so omitted. ठीक है, it must therefore be shown by the defendants for supporting their plea of bar of order 2 rule 2 sub rule 3 that the second suit of the plaintiff filed is based on the same cause of action on which the earlier suit was based, and that because it had not prayed for any relief and it had not obtained the leave of the court in that connection, and hence it cannot sue for that relief in the present second suit. ठीक है, तो ये प्राइमरली जिम्मेदारी किसकी होती है? दिखाना कि he omitted, plaintiff omitted a portion of the claim or he omitted without the leave of the court to sue for a particular relief. किसकी जिम्मेदारी होगी? डिफेंडेंट की जिम्मेदारी होगी, और डिफेंडेंट को रिकॉर्ड पे प्रीवियस सूट की प्लीडिंग्स लानी होंगी। वो बिना प्लीडिंग के कोर्ट जान ही नहीं सकता, ये जान लीजिए। बिना प्लीडिंग्स फाइल पे आए, रिकॉर्ड पे आए, जान ही नहीं पाएगा कोर्ट कि प्रीवियस केस में क्या कॉज ऑफ एक्शन था, क्या रिलीफ क्लेम थी, क्या मैटर इन इशू था। ठीक है, सो इट इज द डिफेंडेंट्स ड्यूटी टू प्लेस इट बिफोर द कोर्ट ऑल द नेसेसरी मटेरियल्स टू सपोर्ट द प्ली ऑफ बार ऑफ ऑर्डर 2 रूल 2। ठीक है, और कोर्ट, एक और बात जान लीजिए, कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑर्डर 2 रूल 2 सुओ मोटो। अपने ओन मोशन पे कोर्ट कभी भी नहीं ले सकता। इट हैज टू बी टेकन बाय द डिफेंडेंट बाय प्लेसिंग नेसेसरी मटेरियल्स बिफोर कोर्ट। ये प्ली कभी भी सू मोटो नहीं ली जा सकती। कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द प्ली ऑफ बार ऑफ ऑर्डर 2 रूल 2 सुओ मोटो, अपने ओन मोशन पे नहीं ले सकता। ये डिफेंडेंट लेगा बाय प्लेसिंग नेसेसरी मटेरियल्स। उसके लिए प्रीवियस प्लेंट्स वेंट्स और जितने भी प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज हैं वो सारी जाएंगी कोर्ट के पास।
ठीक है। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है गुरबख्श सिंह वर्सेस भूरालाल, लोकस क्लासिकस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसी भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लीजिए टिल नाउ 2020 तक, जो ऑर्डर 2 रूल 2 पे है, किसी भी हाई कोर्ट का जजमेंट देख लीजिए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी जजमेंट देख लीजिए, ये जजमेंट हमेशा कोर्ट होता है गुरबख्श सिंह वर्सेस भूरालाल। पर ये स्पेसिफिकली रिलीफ के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट बता रहा था, रिलीफ वाला जो ऑर्डर 2 रूल 2 है ये रिलीफ के कंटेक्स्ट में है, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट इन ऑर्डर दैट अ प्ली ऑफ अ बार ऑफ ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल 3 of CPC should succeed, the defendant who raises the plea must make out first that the second suit was in respect of the same cause of action as that on which previous suit was based. पहले तो cause of action दिखाएं कि same है कि नहीं. Secondly, in respect of that cause of action, the plaintiff was entitled to more than one relief. Third, that being thus entitled to more than one relief, the plaintiff without the leave of the court omitted to sue for the relief which the second suit has been filed. Now the Supreme Court said from this analysis it would be seen that the defendant would have to establish primarily and to start with the precise cause of action upon which the previous suit was filed. For unless there is identity between the cause of action on which the earlier suit was filed and that on which the claim in latter suit is based, there would be no scope for the application of the bar. No doubt, a relief which is sought in the plaint could ordinarily be traceable to a particular cause of action, but this might by no means be a universal rule. As a plea is a technical bar, it has to be established satisfactorily and cannot be presumed merely on the basis of inferential reasoning. इसलिए मैंने बोला था sumo to plea नहीं ले सकता, या by inference भी ये plea नहीं arise होगी. It has to be taken expressly by the defendant. Continuing further, it is for this reason that we consider that the plea of a bar under Order 2, Rule 2, CPC can be established only if the defendant files in evidence the pleadings in the previous suit and thereby proves to the court the identity of the same cause of action in the two suits. तो ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस जजमेंट को कोट करें हमेशा. और देखिए सिमिलैरिटी ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन इज वेरी एसेंशियल, तभी बाकी की चीजें बाद में आएंगी. अगर कॉज ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो ऑर्डर 2 रूल 2 के एप्लीकेशन का सवाल ही नहीं उठता. गुरबख्श वर्सेस भूरालाल आप कब कोट करेंगे? जब व्हेन यू आर स्पेसिफिकली राइटिंग अबाउट ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल 3, ठीक है. और इनफैक्ट ये तो जनरली ऑर्डर 2 रूल 2 पे ही अप्लाई होता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीफ वाले एस्पेक्ट से है. और मोहम्मद खलील खान वर्सेस महबूब अली, वो भी ऑर्डर 2 रूल 2 से जनरली डील करता है, पर वो ज्यादा स्पेसिफिक किस चीज से है? वो ज्यादा स्पेसिफिक रूल 2 के सब रूल 2 से है, जहां पे देयर इज एन ओमिशन टू सू इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लेम ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है. वो उस एस्पेक्ट से ज्यादा डील करता है. तो जब भी ऑर्डर 2 रूल 2 पे सवाल आए तो आपको ये दोनों जजमेंट कोट करने, दोनों लोकस क्लासिकस हैं और दोनों के प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिंसिपल्स ही कोट करने और उससे ज्यादा कुछ नहीं कोट करना है आपको, ठीक है. गुरबख्श सिंह वर्सेस भूरालाल से आप ये सारी बातें बोल सकते हैं कि डिफेंडेंट को प्ली एस्टैब्लिश करनी होती है, इन्फेरेंशियल नहीं ली जा सकती, इट हैज़ टू बी एक्सप्रेस, प्रीवियस प्लीडिंग्स देनी पड़ेंगी तभी जाके वो प्रूव होगा. वाइल मोहम्मद खलील खान वर्सेस महबूब अली के आप तो प्रिंसिपल आप बताएंगे ही. फिर रिलीफ के एस्पेक्ट्स में आप डायरेक्टली बात करेंगे इन गुरबख्श सिंह वर्सेस भूरालाल, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इन लाइन ऑफ जजमेंट इज बंगाल वाटरप्रूफ लिमिटेड वर्सेस बॉम्बे वाटरप्रूफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. It was reported in 1997 volume number 1 Supreme Court cases page number 99. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, after referring the judgment of Gurbaksh Singh versus Bhuralal, it said that the salutary principle behind Order 2 Rule 2 is that the defendant or defendants should not be vexed twice for the same cause by splitting the claim and reliefs in successive litigations. It is therefore provided that the plaintiff must not abandon any part of the claim without the leave of the court and must claim the whole relief or entire bundle of reliefs
available to him in respect of the very same cause of action. He will thereafter be precluded from doing so in any subsequent litigation that he may commence if he has not obtained the prior permission of the court. अब जरा ऑर्डर 2 रूल 2 के ही कंटेक्स्ट में मैं एक जजमेंट डिस्कस करना चाहूँगा, वो है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, डिसाइडेड ऑन 5 जनवरी 1997. अब इस केस का जो लॉ पॉइंट जो हेल्ड हुआ था उसको प्रॉपरली समझने के लिए आपको इसके फैक्ट्स देखने पड़ेंगे, तो आप प्रॉपरली अप्रिशिएट कर पाएंगे कि लॉ पॉइंट जो हेल्ड किया था वो किस कंटेक्स्ट में है. अब देखिए, इस केस में अपेलेंट कौन है? स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. पहला रिस्पोंडेंट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और जो सेकंड रिस्पोंडेंट है वो है प्लेंटिव जो डिक्री होल्डर है. ठीक है, तो वी विल फॉर द सेक ऑफ brevity we will call the appellant Madhya Pradesh as Madhya Pradesh only, and the respondent number 1 Maharashtra as Maharashtra only, and the respondent number 2 plaintiff decree holder as plaintiff only. ठीक है, तो हुआ क्या था कि जो ट्रायल कोर्ट था उन्होंने प्लेंटिफ के फेवर में एक डिक्री पास की. अब इनको सस्पेंड कर दिया गया था और फिर आगे चल के इनको रिमूव भी कर दिया गया था गवर्नमेंट सर्विस से. ये एक असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर हुआ करते थे, और बेसिकली इनके खिलाफ आरोप ये था कि इन्होंने बिना गवर्नमेंट की परमिशन के छुट्टी ले ली थी. ठीक है, ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट सर्विस में रहिएगा तो बिना उनकी परमिशन की छुट्टी ली तो आपके भी साथ ये हो सकता है. सर्विस रूल्स हमेशा पढ़ के जाना चाहिए. तो इन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, इनकी छुट्टी सैंक्शन नहीं हुई पहले. ठीक है, और इन्होंने बिना छुट्टी सैंक्शन हुए अपने आप को एब्सेंट कर लिया. अब इनके खिलाफ मेनली 4 चार्जेस थे इन डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग. पहला चार्ज ये था कि he refused to come to duty at the time of epidemic. Second charge against him was that he left his station without permission. Third charge against him was that he refused to attend the departmental inquiry when ordered to do so. And fourthly, that he willfully and deliberately acted in total disregard of the orders and absented himself from duty. डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में सारे चार्जेस सही पाए गए और ये सस्पेंशन के बाद इनका डिसमिसल हो गया. ये ट्रायल कोर्ट गए, चैलेंज किया और ये कोर्ट से जीत गए. कोर्ट ने जो ऑर्डर था गवर्नमेंट का वो क्वॉश कर दिया, सेट असाइड कर दिया ट्रायल कोर्ट ने, और बोला कि जो इनका डिसमिसल का ऑर्डर है इट इज़ इलीगल, वॉइड एंड इनऑपरेटिव. और उसके बाद एक डिक्लेरेशन दिया दैट द प्लेंटिफ शैल बी डीम्ड टू कंटिन्यू इन सर्विस. जितने भी टाइम इनका सस्पेंशन या डिसमिसल चल रहा था उस पीरियड में इट विल बी डीम्ड कि प्लेंटिफ इज इन सर्विस, और फिर उस सर्विस पीरियड का जो भी टेन्योर है तो उसका जो सम होता है, ठीक है, जो भी जिनकी सैलरी आनी थी विद द कंसिक्वेंशियल बेनिफिट्स वो सारे प्लेंटिफ को मिलेंगे. साथ में जो कॉस्ट ऑफ द सूट है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. ठीक है, प्लेंटिफ को बोथ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज टू पे. अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्री के खिलाफ अपील की. मध्य प्रदेश प्रेफर्ड ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कॉस्ट. अब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों की गवर्नमेंट ने एक सवाल उठाया, सबसे पहले हाई कोर्ट के सामने उठाया था, और पहला सवाल इनका ये था कि दोनों में से कौन से स्टेट की सर्विस में दोनों में से कौन सा स्टेट जो है वो शैल बी डीम्ड टू बी कंपेल्ड टू टेक प्लेंटिफ इन सर्विस. किसको लेना होगा, इनको एब्जॉर्ब करना होगा वर्कफोर्स में, मध्य प्रदेश को करना होगा या महाराष्ट्र को करना होगा. और दूसरा इनका ये था कि दोनों को अरियर्स देना है या ओनली वन कैन बी मेड लायबल फॉर द अरियर्स ऑफ द सैलरी ऑफ द प्लेंटिफ. और अगर दोनों में से एक लायबल है तो कौन सा स्टेट लायबल है. देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन तो दो स्टेट्स के बीच में अराइज हो रहा है, वो इसलिए अराइज हो रहा है क्योंकि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन का भी इशूज था इनके बीच में ना. तो ऐसी टेरिटरी को बिलोंग करते थे जो उस टाइम सक्सीड हुई थी वन पार्ट से इधर. ठीक है, क्योंकि जैसे कुछ टेरिटरीज थी नेमली विदर्भा विच पहले इट वॉज पार्ट ऑफ फॉर्मर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इट बिकेम द पार्ट ऑफ द न्यू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का भी इशू था. तो दैट इज वाई ये दो स्टेट्स हैं, इनके बीच में ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है. करंटली ये प्रॉब्लम पता है कहाँ पे अराइज हो सकती है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो डिवीजन हुआ है वहाँ पे भी अगर मान लीजिए कोई ऐसा इशू उड़ गया तो उन दोनों के बीच में भी ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सर्विस मैटर. बट नॉनदलेस आई डाइग्रेस, मैं बाकी वापस इस पे आता हूँ. तो दोनों ये इशू उठा रहे थे कि भाई किसको सैलरी देनी है, किसको उसको वर्कफोर्स में वापस एब्जॉर्ब करना है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को करना है या स्टेट ऑफ एमपी को करना है, या दोनों को
उसकी अरियर्स ऑफ सैलरी देनी है या दोनों में से कोई एक को देनी है? अगर एक को देनी है तो वो कौन है? अब देखिए, अभी ऑर्डर 2 रूल 2 के कंटेक्स्ट में मैंने ये जजमेंट क्यों बोला है, इन्हीं सब सिचुएशंस के दौरान एक ग्राउंड उठाया गया, ठीक है, और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने ये ग्राउंड उठाया। पहला ग्राउंड इन्होंने ये उठाया कि प्लेंटिफ ने अपने पहले सूट में डिड नॉट क्लेम सैलरी एंड अलाउंसेस फॉर द पीरियड टू फ्रॉम सितंबर 15th of 1943 till the suit filed in the year of 1949, and therefore by that reason and by the reason of order 2 rule 2 of the CPC, he is precluded from claiming his salary and allowance for that period. फिर एक और पॉइंट इन्होंने ये उठाया था कि दैट सूट इज ऑल्सो बार्ड बाय आर्टिकल 102 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1908। उस वक्त 1908 थी, दैट वाज इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द डिसीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर हो रहा है तभी, इवन दो द अपील वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, तब भी 1908 की लिमिटेशन एक्ट की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि जो प्लेंटिफ का केस था उसके कंटेक्स्ट, उसके मैटर के लिए जितना भी मैटर डील विद हो रहा था वो 1908 की लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से हो रहा था। तो ये सेकंड कंटेंशन था स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। पहला ये था कि इनका जो क्लेम ऑफ अरियर एंड सैलरी है इट इज बार्ड बाय ऑर्डर 2 रूल 2, और जो दूसरा है वो क्या है, दूसरा इनका पॉइंट ये था कि इनका जो सूट है इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। तो इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देता है, ठीक है, जो अक्सर आपको बुक्स में बस इतना ही पोर्शन मिलता है, बट इट इज बेरेफ्ट कि किस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था। सुप्रीम कोर्ट सेड that the contention of state of Madhya Pradesh cannot be accepted. It said that the suit of the plaintiff would be barred under order 2 rule 2 of CPC only when he omits to sue for or relinquishes a claim in the suit with the knowledge that he has the right to sue for that relief. ठीक है, पहली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जब उसको नॉलेज है कि उसके पास वो क्लेम है और तब वो रिलिंक्विश करता है या ओमिट करता है, तब वो बार अप्लाई होगा। देन सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट विल बी करेक्ट टू से दैट द प्लेंटिफ एट द डेट ऑफ द फॉर्मर सूट was not aware of his right on which he insists in the latter suit, and hence plaintiff cannot be said to be disentitled to the relief in the latter suit. The reason is that at the date of the former suit, the plaintiff is not aware about the rights on that which he insists in his subsequent suit. A right which the litigant does not know that he possesses, or a right which is not in existence at the time the first suit, at the time when the first suit was filed, can hardly be regarded as a portion of his claim within the meaning of Order 2, Rule 2 of CPC. So always remember that there is one niche area जहां पे bar of Order 2, Rule 2 will not apply. पहला, जहां पे right existence में ही नहीं है, ठीक है, वो right या relief existence में ही नहीं है। और दूसरा क्या है, जहां पे he does not have the knowledge that he possesses such right or relief, ठीक है। So lack of knowledge or lack of existence of that right or relief is a genuine ground to avoid Order 2 Rule 2, ठीक है, उसका बार अवॉइड करने का एक genuine ground है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर आगे बोला कि मध्य प्रदेश का कंटेंशन is wrong primarily because in asking for arrears of salary in a subsequent suit, the plaintiff's case will not be hit by Order 2 Rule 2, primarily because as far as the law relating to arrears of salary was concerned at that time, at the time of the previous suit, the plaintiff did not know of or possess any such right. उस टाइम पे लॉ वैसा था ही नहीं, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो चेंज किया ना लॉ, तो जब बाद में चेंज किया देन द प्लेंटिफ वुड बी अवेयर अबाउट इट, कि उसे पहले ही सपना आएगा 7 साल पहले कि ओके सुप्रीम कोर्ट इज अबाउट टू मेक सच काइंड ऑफ रूलिंग, ऑफ कोर्स नॉट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द प्लेंटिफ डिड नॉट नो ऑफ और पोजेस सच राइट, तो कैसे ऑर्डर 2 रूल 2 का बार अप्लाई कर जाएगा, नहीं कर सकता। सो द प्लेंटिफ देयरफॉर कैन नॉट बी सेड टू हैव ओमिटेड टू सू फॉर एनी सच राइट. And another reason why the bar under Order 2 Rule 2 of the Code of CPC cannot operate is the plaintiff's cause of action in 1956 suit is totally different from the cause of action in 1949 suit.
फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सर्विस जूरिस्प्रूडेंस के कुछ जजमेंट्स को रेफर करने के बाद बोला कि जो प्लेंटिव का कॉज ऑफ एक्शन फॉर हिज अरियर्स ऑफ सैलरी है वो ये है कि जब प्लेंटिव रीइंस्टेट हो गया सर्विस में परसुएंट टू द डिक्री, तो प्लेंटिव बिकेम एंटाइटल्ड टू द सैलरी व्हिच वाज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन. बट प्लेंटिव वाज अगेन सस्पेंडेड from 19th January 1954 and he was dismissed from service on 23rd February 1956. Therefore, the plaintiff filed a suit on 6th October 1956. His entire claim of salary is founded first on his reinstatement on 12th December 1953 pursuant to the decree, and second on the order of suspension dated 19 January 1958 and the order of dismissal on 23rd February 1956, which plaintiff challenged as illegal. The original order of suspension on 16 September 1943 as well as the original order of dismissal on 7th November 1945 was declared to be illegal by the decree dated 30th August 1953. Therefore, when the plaintiff was reinstated on 12th December 1953, it is then that the plaintiff claim for arrears of salary accrued due. जब आप reinstate हुए तभी तो claim for salary arise होगा, वरना कैसे arise होगा? This salary was again suspended from 19th January 1954 and then on 23rd February 1956 the plaintiff was again dismissed. Supreme Court said that the order of suspension does not put end to his service. Suspension merely suspends the claim to the salary. During suspension, there is suspension allowance. Hence, the cause of action in the two cases is also different. तो arrears of the salary तो आपको देनी ही पड़ेगी दोनों ही सिचुएशन में. और क्योंकि जब 1943 में जब इसका पहली बार डिसमिसल हुआ था तब वो राइट ही एग्जिस्ट नहीं करता था उसके पास उस सिचुएशन में, क्योंकि वो राइट तो बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, वो मैंने जजमेंट रख रखा है आपके लिए इसी केस लॉ में. उसके बाद ही सुप्रीम वो क्या कहते हैं ये राइट ऑफ अरियर्स ऑफ द सैलरी फॉर द पीरियड ड्यूरिंग द पर्सन वाज सस्पेंडेड, उसके लिए अ पर्सन इज एंटाइटल्ड अगर ही गेट्स अ डिक्री ऑफ रीइंस्टेटमेंट बाय द कोर्ट. तो ऐसी सिचुएशन में प्लेंटिव को पहले ही नाइदर पोजेस दैट राइट, वो राइट एग्जिस्टेंस में नहीं था, और दूसरी बात ही नाइदर हैड द नॉलेज. तो जिस भी चीज के लिए ही डज नॉट हैव द नॉलेज or the right to relief in respect of that claim was not in existence, then the bar of order 2 rule 2 will not apply. तो ये एस्पेक्ट तो आपको समझाने के लिए था. अगर आपको ना समझ में आया हो या मुझसे फिर पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप इस जजमेंट की बात को मिसकंस्ट्रू करें, ठीक है, क्योंकि दिस जजमेंट इज केपेबल ऑफ बीइंग मिसकंस्ट्रूड. अभी मैं बताऊंगा कैसे. अब जो लिखना है आपको क्या लिखना है, अब देखिए मेन चीज जो आपको उसमें फोकस करना है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में. और बाय द वे मैं बता दूं कि इस केस में जो कॉस्ट देने पड़े थे प्लेंटिफ को स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को ही देने पड़े थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ही कॉस्ट पे करो सारे के सारे. खैर, नॉट विस्टैंडिंग दैट, आपको लिखना क्या है कि a right which the litigant does not know that he possesses or a right which is not in existence at the time of the first suit can hardly be regarded as a portion of his claim within the meaning of order 2 rule 2 of CPC. Then naturally logically आप कंस्ट्रू कर सकते हैं then the bar of order 2 rule 2 will not apply. ठीक है, ये अब 3 लाइनें हैं, लेकिन क्या है ना, इसको मिसकंस्ट्रू लॉ स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ कैसे. आप सोचोगे कि अगर नॉलेज नहीं है तो मतलब आदमी भूल गया या उसको याद नहीं रहा तो भी ऑर्डर 2 रूल 2 का बार नहीं अप्लाई होगा. ऐसा नहीं है, ये वो नेग्लिजेंस कहलाती है. ठीक है, दैट इज टर्म्ड एज नेग्लिजेंस. यू कैन नॉट टेक अ प्ली इन द सब्सिक्वेंट सूट कि मैं भूल गया था या उस वक्त मुझे ध्यान नहीं था या मुझे लॉ की नॉलेज नहीं थी, ये आप नहीं बोल सकते. इस सिचुएशन में क्या हुआ था जिसके कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जब लिटिगेंट के पास वो राइट था ही नहीं एग्जिस्टेंस में तो नॉलेज का तो सवाल ही नहीं उठता. सो इफ अ लिटिगेंट डज नॉट पोजेसेस अ राइट और ही डज नॉट नो दैट ही पोजेसेस अ राइट or a right which is not in existence at the time of the first suit, then it cannot be regarded as a portion of his claim within the meaning of order 2 rule 2 and also in the context of relief claims
तो वो रिलीफ ही वो क्लेम नहीं कर सकता। ना पोर्शन अबैंडन करने का सवाल आता है या ओमिट करने का सवाल आता है, ना रिलीफ के ओमिशन का सवाल आता है जब राइट एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट इस कंटेक्स्ट में बोला था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो अरियर्स ऑफ द सैलरी को लेके जो लॉ था वो उन्होंने बाद में चेंज किया है। ठीक है, जो प्लेंटिव का सबसे पहला सूट था उस टाइम पे वो लॉ एग्जिस्टेंस में नहीं था, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही बोला था, उसी के कंटेक्स्ट में बोल रहा था कि a right which the litigant does not know that he possesses or a right which is not in existence at the time of first suit can hardly be regarded as a portion of his claim under order 2 rule 2 or can hardly be regarded as an omission to claim a relief under order 2 rule 2। ठीक है, तो बेसिकली इसका इफेक्ट ये है। अब कई बुक्स में आपको ये एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है, ये 3 लाइन आपको ऐसे ही मिलेंगी। अब इसका इफेक्ट ये होता है कि आदमी ये समझता है कि ओके क्या कहते हैं कि अगर आदमी भूल भी गया या उस वक्त उसको ध्यान में नहीं रहा तो बार ऑफ ऑर्डर 2 रूल 2 कैन बी अवॉइडेड। नो, दैट इज नेग्लिजेंस। वो नेग्लिजेंस होती है। वहाँ पे नॉलेज, वहाँ पे ये फिर ये सारी चीज़ें नहीं क्योर करेगा कोर्ट, बोलेगा कि आपको पता होना चाहिए था। अगर वो राइट आपकी एग्जिस्टेंस में है, आप भूल गए, आपने पढ़ा नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा इट्स योर फॉल्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तभी बीच में आएगा या कोर्ट तभी ऑर्डर 2 रूल 2 का बार नहीं अप्लाई करेगा जब वो राइट एग्जिस्टेंस में ही ना हो इन द फर्स्ट सूट, वो बाद में आया हो, आफ्टर फर्स्ट सूट जब राइट आया हो तब जाके आप कह सकते हैं कि अब वो नहीं अप्लाई करेगा। लेकिन अगर राइट एग्जिस्टेंस में है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग फर्स्ट सूट और उसके बाद आप कहते हैं कि अरे मैं भूल गया था या मुझे उस वक्त ध्यान नहीं रहा था या मेरा लॉयर कॉम्पिटेंट नहीं था, उसकी नॉलेज में नहीं था, तो ये उस वाली नॉलेज या नेग्लिजेंस को क्योर करने के लिए नहीं है। ठीक है, इस जजमेंट का ये जो पोर्शन है इसके कंटेक्स्ट में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग इसको कंटेक्स्ट में नहीं समझते, उनका आंसर हमेशा गलत होता है। डीजेएस में जाते हैं, ऐसा कोई सवाल पूछ लेते हैं, आंसर हमेशा ऑर्डर 2 रूल 2 में हमेशा उनका गलत होता है, क्योंकि वो इस जो लाइन है ना इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट देख रहे हैं। हमेशा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसके कंटेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल्स तो ठीक हैं, प्रिंसिपल्स आप ऐसे पढ़ सकते हैं फिर उसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसी लाइनें हों तो इनको इनके प्रॉपर कंटेक्स्ट में समझना चाहिए। अगर इनको इनके प्रॉपर कंटेक्स्ट में नहीं समझेंगे, कभी ऑर्डर 2 रूल 2 को ढंग से नहीं समझ पाएंगे और उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई आई टुक यू थ्रू दिस एंटायर जजमेंट एंड थ्रू दिस एंटायर कनंड्रम। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो बिना हिचक के आप मुझसे पूछिएगा ये दोबारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोविजन इन सीपीसी। पहली बार में नहीं समझ में आया तो डू नॉट गेट डाउन ऑन द डम्प्स, क्योंकि इट इज़ वेरी कॉमन। मुझे भी पहली बार में नहीं समझ में आया था, मुझे बहुत टाइम लगा था इसे समझने में। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोविजन, तो जस्ट पेशेंस रखिएगा इसके साथ और इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस पर बहुत सारे जजमेंट डिस्कस करने हैं। वी हैव टू रेफर टू मैनी जजमेंट्स ऑन दिस पॉइंट, और सारे जजमेंट्स को रेफर करने के बाद ही आप इसका पूरा एम्बिट अप्रिशिएट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जब भी आप ऑर्डर 2 रूल 2 को रियलिटी में देखेंगे तो उसके साथ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का भी पॉइंट जुड़ा होता है ना। मैं तो एक लाइन में बता दूंगा क्या डिफरेंस है, लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा। इनफैक्ट लेट मी जस्ट टेल यू, एंड आई कोट द जजमेंट ऑफ देवाराम वर्सेस ईश्वर चंद। इन दैट केस it was held that the doctrine of res judicata differs from the principle underlying order 2 rule 2 in that the former, that is res judicata, it places emphasis on the plaintiff's duty to exhaust all available grounds in the support of his claim। सारे available grounds जो हैं आपके पास वो आप exhaust करिए, और res judicata defendant और plaintiff दोनों पे apply करता है। While order 2 rule 2 requires the plaintiff to claim all the reliefs emanating from the same cause of action, Order 2 concerns framing of a suit and requires that the plaintiff shall include whole of his claim in the framing of the suit. Then the Supreme Court continued in the context of Order 2 Rule 2 and said that if the plaintiff relinquishes any claim to bring the suit within the jurisdiction of any court, he will not be entitled to the relief in any subsequent suit. Further, Sub-Rule 3 provides that the person entitled to more than one relief in respect of the same cause of action may sue for all or any of such reliefs. But if he omits, except with the leave of the court, to sue for such relief, he shall not afterwards be permitted to sue for the relief so omitted. अब देवाराम के केस में क्या हुआ था कि in that it was held that the previous suit was for recovery of loan which was dismissed on the ground that the document on the basis of which suit was filed was not a sale deed but an agreement for sale. Sale deed और agreement for sale अलग अलग होता है। Subsequent
subsequent suit for recovery of possession on the basis of title was not hit by order 2 rule 2 as the cause of action in the two suits was not identical or one and the same. और उसके बाद इसी जजमेंट में दैट इज देवाराम वर्सेस ईश्वर चंद, इसमें फिर रेस जुडिकाटा के जितने भी प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए हैं, उसके सेक्शन, मैक्सिम एसेट्रा एसेट्रा, वो सारे कोट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जस्ट सेड कि रेस जुडिकाटा भी क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीवियस सूट और सब्सिक्वेंट सूट में इश्यूज डिफरेंट हैं. हालांकि पार्टी और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट सेम है, बट क्योंकि इश्यूज एंड कॉज ऑफ एक्शन आर डिफरेंट एंड ऑन दैट मैटर the court has not heard and finally decided those issues, hence the basic requirement of the applicability of the rule of res judicata is missing. और अगर आपने कोई ऐसी प्लीडिंग रिकॉर्ड पे नहीं रखी है या कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई है जिससे ये दिख सके कि ऐसे इश्यूज पहले भी केस में डिसाइड हो चुके हैं, तो रेस जुडिकाटा के अप्लाई होने का सवाल ही नहीं उठता. वैसे ही सिमिलरली ऑर्डर 2 रूल 2 क्यों नहीं अप्लाई होता, वो मैंने आपको बता दिया, कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट है. ऑर्डर 2 रूल 2 तभी अप्लाई होता है व्हेन द कॉज ऑफ एक्शन इज द सेम. तो डिफेंडेंट दोनों ही ग्राउंड पे फेल हुए थे. और एक बात आप याद रखिए, जब भी ऑर्डर 2 रूल 2 का ग्राउंड लेता है ना डिफेंडेंट, ऑफ कोर्स डिफेंडेंट ही लेगा क्योंकि वो प्लेंटिफ को नॉन सूट करना चाहता है, तो वो रेस जुडिकाटा का भी ग्राउंड लेता है. और रेस जुडिकाटा का जब भी ग्राउंड लेता है तो रेस जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं उसमें. और दोनों सिचुएशंस में प्रीवियस प्लीडिंग जरूर देखी जाती हैं. ठीक है, तो आप जब ऑर्डर 2 रूल 2 समझें तो ये भी देखें कि रेस जुडिकाटा कैसे और किधर अप्लाई हो रहा है और कैसे नहीं अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये दोनों इश्यूज मिक्स्ड होके आते हैं. जब भी डिफेंडेंट ऑर्डर 2 रूल 2 का ग्राउंड उठाएगा, वो देखिएगा कहीं ना कहीं रियलिटी में, प्रैक्टिकली आप हर जगह देखेंगे रेस जुडिकाटा का भी इशू उठाएगा. डीजेएस में जाएंगे एग्जाम देने, वो आपको ऐसे ही पेपर देंगे क्योंकि उनको आप एज एस्पेरेंट से पहले उन्हें जज चाहिए. हाल ही में वो थोड़ा क्या कहते हैं, बहुत ही बेसिक और थियोरेटिकल पेपर लेने लगे हैं, लेकिन 2015 से पहले, 2015 तक, फ्रॉम 2016 टू 2001, वो हमेशा एकदम प्रैक्टिकल ऐसा पेपर लेते थे जैसे कि आप प्रैक्टिस करके अच्छी उन्हीं के सामने आए. ठीक है, तो कब वो उसी फेस पे चले जाएं तो उसका भरोसा नहीं है. अब प्रैक्टिस करनी है तो आपको इन सारे इश्यूज के बारे में ध्यान रखना चाहिए. आप किसी और स्टेट का पेपर लिख रहे हैं जैसे यूपी, उत्तराखंड या एमपी, तो वहाँ पे जब भी जजमेंट राइटिंग का पेपर आएगा तो यू नीड टू बी अवेयर रिगार्डिंग इट. और अभी एक बात का ध्यान रखिए, अभी वो लोग थियोरेटिकल पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं पूछेंगे. आगे हो सकता है वो प्रैक्टिकल कर दें, यू नेवर नो. अब जैसे कि राजस्थान के पेपर में राजस्थान हाई कोर्ट अब कंडक्ट कराने लगा है, तो वो थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगा है. तो ऐसे में लोग कह रहे हैं कि उसका जो लेवल है बढ़ गया है राजस्थान जुडिशियल सर्विस का. तो यू नेवर नो कि कब शिफ्ट हो जाए बाकी की जुडिशियल सर्विस भी, और कब वो एक दूसरे से लर्न करने लगे, वो कहेंगे नहीं हम डीजेएस का ही मॉडल अप्लाई करेंगे जिससे वी गेट कॉम्पिटेंट जजेस. तो ऐसी सिचुएशंस में एक बात का ध्यान रखिएगा कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉ. वो तो ठीक है, आप प्रिंसिपल्स और ये सारी चीज़ें याद कर लीजिए, पर आपको एप्लीकेशन आना बहुत ज़रूरी है. जब तक लॉ समझेंगे नहीं, लॉ तब तक आप यूज़ नहीं कर पाएंगे. उसको समझना बहुत ज़रूरी है. बाकी जो मैंने प्रिंसिपल्स बताए ये आपको मेंस में लिखने ज़रूर हैं. कॉज ऑफ एक्शन के बारे में जो बताया, यू हैव टू राइट इट डाउन. आपको जो प्राइवेट काउंसिल के ऑर्डर 2 रूल 2 के प्रिंसिपल्स बताया, यू हैव टू राइट इट डाउन. आपको गुरबख्श सिंह वर्सेस बूरालाल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट विद रिगार्ड टू ऑर्डर 2 रूल 2 जो बताया, यू हैव टू राइट इट डाउन. अब वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, तो ये बहुत ही एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था ऑर्डर 2 रूल 2 को लेके. अभी ऑर्डर 2 रूल 2 पे बहुत एलैबोरेशन मुझे करना है, तो उसके पर्पस के लिए आई विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द केस लॉज जो बहुत लैंडमार्क केस लॉ हैं ऑर्डर 2 रूल 2 पे. लेटेस्ट भी हैं और ये क्या करते हैं, ये आपको ऑर्डर 2 रूल 2 समझाने में बहुत मदद करेंगे. आप देखेंगे इन सारे ही केसेस में कि प्रिंसिपल्स आपको हमेशा सेम मिलेंगे. जो प्रिंसिपल्स मैंने अभी बताए वो सारे प्रिंसिपल्स मिलेंगे, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है ये आपको सीखना है. इसी के लिए वी विल डिस्कस सम ऑफ द मोर केस लॉज टुमारो. आज के लिए तो हमारे पास टाइम खत्म हो गया है. ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक लॉ के प्रिंसिपल्स आपका सेकंड नेचर ना बन जाए. तो जो भी आज समझाया है ध्यान से सुनिएगा, राइट इट डाउन, मेमोराइज इट. ठीक है, मेमोराइज इट, देन वी विल गो ऑन द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है,
So that is it for today. I will see you tomorrow.